السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اب ہم اس کا سٹارٹ کر رہے ہیں ایپیسوڈ نمبر 10۔ اشال اور سوہا پارلر سے آ چکی تھی۔ ادینہ بیگم نے اسے نیچے والے ایک روم میں بٹھایا تھا۔ دونوں ڈریس ایک تھا، سفید رنگ کا خوبصورت سا فراک سے تن کیے ہوئے تھا، سر پر گولڈن کلر کا دوپٹہ اچھے سے سیٹ کیے، لائٹ سے میک اپ کیے، لائٹ جویلری پہنے وہ دونوں ہی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سوہا کے چہرے پر خوشی صاف ظاہر تھی، جبکہ اشال خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ آرز اور ارتضا بھی سفید شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کو نفاست سے سجائے، پیروں میں کھیڑی پہنے بہت ہی ہینڈسم لگ رہے تھے۔ لان کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ تمام مہمان آنا شروع ہو چکے تھے، گھر کے ابھی لوگ انہیں اٹینڈ کر رہے تھے۔ میرے خیال سے اب نکاح کی رسم ادا ہو جانی چاہیے۔ افطار میں جب آدھا گھنٹہ رہ گیا تو اعظم صاحب نے مسکرا کر ادینہ بیگم سے بولے۔ ادینہ بیگم اس بات میں سر ہلا گئی۔ نہید بیگم اور ناصرہ بیگم سوہا اور شال کو لے کر آئی۔ آرز کی نظر سوہا پر گئی۔ وہ ساکستہ ہو گیا تھا۔ اس نے پہلی بار اسے میک اپ میں اور اتنا تیار دیکھا تھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا دل کیا وقت یہیں تھم سا جائے۔ ارتضا کی نظر بھی اشال پر گئی تھی۔ وہ بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ ارتضا اداسی سے سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ پہلے سوہا آرز کا نکاح تھا، جہاں ان دونوں کو بٹھایا گیا تھا، بیچ میں ایک نٹ کا پردہ تھا۔ سوہا فیاض خان ولد فیاض خان، آپ کا نکاح ملک آرز اعظم ولد ملک اعظم سے حق مہر 3 تولے سونا کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے سوہا سے پوچھا۔ سوہا جو اس وقت فیاض صاحب کی کمی شدت سے محسوس کر رہی تھی، آنکھیں نم تھی۔ قبول ہے، کانپتے ہوئے لبوں سے اس نے لفظ ادا کیے تھے۔ سب لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ 2 دفعہ مزید مولوی صاحب نے سوہا سے پوچھا تھا۔ اس نے قبول ہے کہہ کر سائن کرتے وقت سوہا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ضراب نے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے اور وہ کانپتے ہوئے سائن کر گئی تھی۔ مولوی صاحب آپ آرز کے پاس آئے تھے۔ ملک آرز اعظم ولد ملک اعظم، آپ کا نکاح سوہا فیاض خان ولد فیاض خان سے حق مہر 3 تولے سونا کیا، آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ قبول ہے، چہرے پر دل فریب مسکراہٹ سجائے وہ جواب دینے لگا تھا۔ مولوی صاحب نے 2 دفعہ اسے اسی طرح پوچھا تھا۔ اس نے 2 دفعہ یہی جواب دیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں آ چکے تھے۔ اب اشال اور ارتضا کی باری تھی۔ مولوی صاحب اشال کے پاس موجود تھے، جو سنجیدہ بیٹھی تھی، آنکھیں نم تھی۔ یہ زندگی نہیں تھی وہ جس کی اشال نے خواب دیکھے تھے۔ اسے جیسے اپنی زندگی کو لے کر سوچا تھا، ویسا بالکل بھی نہیں ہوا تھا۔ آج وہ ایک ایسے انسان کے نکاح میں جا رہی تھی جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ملک اشال اعظم ولد ملک اعظم، آپ کا نکاح ملک ارتضا شاہنواز ملک شاہنواز حق مہر 3 تولے سونا کیا گیا، آپ کو نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے اشال سے اس کی مرضی جاننا چاہا۔ قبول ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یہ الفاظ ادا کر گئی تھی۔ 2 دفعہ پھر سے مولوی صاحب نے اس کی مرضی جاننا چاہے، جس پر اس نے قبول ہے کہہ دیا تھا۔ آج وہ اس شخص کی ہو گئی تھی جس کا وہم و گمان بھی اس نے کبھی نہ کیا تھا۔ ملک ارتضا شاہنواز ولد ملک شاہنواز، آپ کا نکاح ملک اشال اعظم ولد ملک اعظم حق مہر 3 تولے سونا آپ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے ارتضا سے پوچھا۔ ارتضا نے ایک نظر اشال پر ڈال لی جو رو رہی تھی، اور وہ خاموشی سے سر جھٹک کر بس سر کو خم دے گیا تھا۔ مولوی صاحب نے مزید 2 دفعہ اس سے یہی پوچھا تھا۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ دونوں بھی ایک دوسرے کے نکاح میں آ چکے تھے۔ سب گھر کے افراد بہت خوش تھے، سب بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ رجا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ اشال اور سوہا کو ارتضا اور آرز کے پہلو میں بٹھایا گیا تھا۔ سوہا کی ہارٹ بیٹ بہت تیز تھی۔ آرز نے ایک نظر سے دیکھا تھا۔ تم اتنی پیاری لگ رہی نا، دل کر رہا ہے کہ ڈیڈ سے کہہ دوں آج ہی رخصتی کروا لو۔ اسے گہری نظر سے دیکھتے سرگوشی کرتے بولا۔ سوہا نے نظریں جھکا لی تھی۔ ابھی ہمارا روزہ نہیں کھلا، گندی باتیں نہ کریں۔ وہ نظریں جھکائے سے جواب دینے لگی تھی۔ آرز کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، جبکہ وہ دونوں بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ کھانا وغیرہ کھل گیا تھا، سب لوگ روزہ کھول رہے تھے۔ فوٹوگرافر اشال ارتضا سوہا آرز کی پکچر لے رہے تھے۔ جب نظر ضراب حیا اور نور پر گئی تھی، وہ دونوں ہی نور کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ سر فیملی پکچر؟ فوٹوگرافر نے ضراب کو مخاطب کرتے بولا۔ ضراب نے فوٹوگرافر کو دیکھا، پھر حیا کی جانب دیکھا جو خاموش کھڑی تھی۔ اس بات میں سر ہلا کر ضراب نے نور کو گود میں لیا تھا، حیا کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ فوٹوگرافر نے تصویر کھینچی تھی۔ نکاح 1.5 ماہ بعد ان کی پہلی تصویر آئی تھی۔
मेहमान जा चुके थे, घर के लोग मौजूद थे। सोहा आर्स का फोटो शूट हो रहा था, जबकि इशाल ने कहा था कि वो थक गई और कमरे में चली गई थी। इर्तिजा भी अपने कमरे में चला गया था। फोटो शूट होने के बाद नाजरा बेगम सोहा को भी रूम में ले आई थी। वो बहुत ज्यादा थक गई थी, बस कपड़े चेंज कर सोना चाहती थी। इसने कपड़े वगैरह तब्दील किए और कमरे में आई। तभी दरवाजा नॉक हुआ। सोहा उठकर दरवाजे की जानब देखा, खोला तो आर्स को देखकर इसे हैरत हुई। आप यहाँ? सोहा हैरानगी से इसे देखते हुए पूछने लगी। आर्स अंदर आ गया। अब तो मिसिज मलक आर्स आजम हो, बन चुकी हो, कभी भी आ सकता हूँ, तुम रोक भी नहीं सकती। उसे देखते हुए मुस्कुरा कर बोला था। सोहा ने इसे देखने लगी थी। इसकी हार्ट बीट तेज चल रही थी, वो घबरा रही थी। मैं मामू को आपकी शिकायत करूंगी, वो मुंह बनाए मासूमियत से इसे बोली थी। आर्स ने इसे देखा। तुम कर भी लो तो मैं डरने वाला नहीं हूँ, कहते साथ वो आगे बढ़कर इसकी बेदाग पेशानी पर अपने लब रखा था। सोहा शल सी हो गई थी। आई लव यू, उसकी कान में गंभीर सा बोला। वो साकत खड़ी थी, मुस्कुरा कर इसे देखता चला गया था और कुछ देर वैसे ही खड़ी रही। फिर होश आती वो मुस्कुरा दी थी। या नूर को लेकर पोषण में आई। जराब के रूम में आकर जराब को देने लगी, क्योंकि वो इसके कपड़े पहले ही बदल चुकी थी। अपने कमरे में आ गई थी। या ने कपड़े चेंज किए, मगर शर्ट की जिप जो थी उससे बंद नहीं हो रही थी। ड्रेसिंग के सामने खड़ी वो बाल आगे किए जिप बंद करने की कोशिश कर रही थी। जराब नूर के पास थी। अचानक रोने लगी थी। जराब फीडर ढूंढने लग गया था, मगर वो नहीं मिला। शायद हया भूल गई थी। वो उठा और हया के रूम की जाना पड़ा, जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। वो थोड़ा और खोल कर अंदर आ गया था। जराब को मिरर से देखकर वो फौरन पलट कर अपनी बैग ड्रेसिंग से लग गई थी। जराब ने नजर इसे देखा था। नूर का फीडर? वह कंफ्यूज सा होता इसे कहते साथ फीडर उठाकर जाने लगा था। हया जिप बंद करने की कोशिश कर रही थी, मगर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जराब ने इसकी जानब तक कदम बढ़ाए थे। हया जो अपनी सांस बंद होती महसूस हुई थी। फीडर ड्रेसिंग टेबल पर रखकर इसके बाद उसे पकड़ता नूर गया और आंखें बंद कर इसकी जिप बंद करने लगा। हया की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ी थी, वो साकत सी हो गई थी। जराब जिप बंद करता फीडर उठाकर चला गया था। हया इसे जाता देखने लगी थी। कुछ देर वैसे साकत खड़ी रही। अचानक इसके जहन में माजी का मंजर लहराया था। ये तुम क्या कर रहे हो? हमारी शादी नहीं हुई अभी। वो वीडियो कॉल किए घबरा कर इसे देखते हुए बोली थी। शादी हुई तो है ना हमारी, और मैं क्या कर रहा हूँ? सिर्फ शर्ट के आगे वाले 2 बटन खोल दो, दैट्स इट। लड़का इसे देखते हुए फौरन से बोला था। वो इसे देख रही थी। नहीं, ये गलत है, फौरन से जवाब देने लगी थी। वो लड़का इसे देखने लग गया था। कुछ गलत नहीं, इस तरह तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? ठीक है, बाय, जब ट्रस्ट हो तब बात करना। वो लड़का फौरन बोला। वो इसे सॉरी बोलकर शर्ट के 2 बटन खोलने लगी। हया फौरन होश में आई थी। अपने सीने पर जोर से हाथ फेरने लगी थी। ना रुकने वाले आंसू एक बार फिर से शुरू हो गए थे। इसकी हिचकियां सिसकियां ऊंची होती जा रही थी। वो बेड पर बैठी आंसू बहा रही थी। इसकी रोने की आवाज पर जराब परेशान सा होता इसके कमरे की जाना पड़ा था। जराब हया के कमरे में आया। सरौता पाकर फौरन इसकी तरफ बढ़ा। हया ने इसे देखा था। क्या हुआ हया? जराब इसके पास बैठते हुए पूछने लगा। हया बस रो रही थी। इसके रोने में तेजी हो गई थी। रिलैक्स, पानी पियो। गिलास में पानी डालने से रिलैक्स करने की कोशिश करते हुए बोला। ग्लास इसकी जान बढ़ाया था। हया ने ग्लास थाम लिया था। पानी पीकर वो गहरे गहरे सांस लेने लगी थी। हया तुम ठीक हो? जराब इसे देखते हुए फौरन से पूछने लगा। हया ने इसे देखा। इस बात में सर हिला गई। जराब उठकर खामोशी से जाने लगा। हया ने इसका हाथ थाम कर इसे रोक लिया था। जराब इसे देखने लग गया। जराब इसे देख रहा था। जब इसे बिठाया और नम आंखों से इसकी जानब देखा, जराब भी परेशान सा इसे देख रहा था। मैंने एक ऐसे घर में आंख खोली थी जहाँ रिश्ते अहमियत नहीं रखते थे। डैड ज्यादातर बिजनेस टूर पर आउट ऑफ कंट्री रहते थे और मॉम फ्रेंड्स वगैरह किटी पार्टीज में रहना बहुत पसंद करती थी। मेरे डैड मेरी मॉम से बेहद मोहब्बत करते थे। बचपन से मेरा ख्याल मुलाजमा ने रखा था, या फिर यशमा ने 5 साल की थी। डैड बिजनेस टूर से अचानक घर आ गए थे। मैं बहुत खुश हुई थी। उन्होंने मुझे गोद में उठाया था। मॉम के रूम की जाना पड़ गया था। मॉम का दरवाजा खुलते सामने का मंजर देख मेरे डैड ने मुझे फौरन गोद से उतार दिया था। मुझे इस वक्त तो समझ न आई कि डैड के फ्रेंड मॉम के रूम में क्यों है, लेकिन बाद में समझ आ गई। मॉम और डैड एक दूसरे पर चीखने लगे थे, ये जाने बगैर कि मैं वहां मौजूद हूँ। यशमा भी खड़ी है। डैड गुस्से से चले गए थे, फिर कभी वापस नहीं आए। एक कार एक्सीडेंट में इनकी जान चले गई। यकीन जाने मैंने अपनी माँ की आंखों में आंसू तो क्या, तकलीफ भी नहीं देखी थी। हया नम आंखों से जराब को देखते हुए तफसील से सब बता रही थी। वो खामोशी से सब सुन रहा था। फिर वक्त गुजरता गया, हम बड़े होते गए। मॉम बिजनेस में मसरूफ हो गई थी।
यशमा की जिंदगी में आप आए, मुझे नहीं पता आप कैसे इसकी जिंदगी में आए, लेकिन जब आए तो मुझे आपसे थोड़ी थोड़ी जेलसी होने लगी थी। अपनी हर बात पर आपका जिक्र करती थी, रातों को आपसे फोन पर बात करती थी, मैं चिढ़ जाती थी, उठकर चली जाती थी कमरे से, लेकिन मैं खुश थी इसे आप जैसा प्यार करने वाला शख्स मिला। तब आपसे बात कर लेती तो मेरे पास आकर मेरे गले लगकर सो जाती। चेहरे पर उदास मुस्कुराहट सजाए आज तक जो इसके साथ होता आ रहा था वो बता रही थी। जरा इस पर नजरें जमाए सुन रहा था। मुझे याद है जब का रिश्ता खाला लाई थी, मॉम चिल्ला रही थी। पहली दफा यशमा ने मॉम के आगे बोला था, मॉम फिर भी नहीं मानी थी। अगर आपको बिल्डिंग मॉम के नाम ना करते तो आप दोनों का निकाह नहीं होता। फिर आप दोनों का निकाह हो गया, यशमा चली गई, मैं अकेली हो गई। मैं बस रूम में सारा सारा दिन गुजार देती। फिर मेरी जिंदगी में वो दिन आया जो शायद नहीं आना चाहिए था। या कहते साथ एक कर्ब से आंखें बंद कर गई थी। जरा खामोशी से सुन रहा था। इस इसके अंदर से जो सब कब से छुपाई बैठी थी निकालने दे रहा था। मेरी जिंदगी में एक शख्स आया जिसने मुझे बेहद प्यार दिया। दिन रात सुबह सब मेरे नाम कर दिया। बचपन से मुझे अटेंशन प्यार की कमी रही थी, वो शख्स ने मुकम्मल कर दी थी। मैं इसकी मोहब्बत में दिन ब दिन पागल बनती जा रही थी। वो जैसा कहता था मैं करती गई थी। फिर एक दिन मैंने यशमा से मिलाया। यशमा ने मुझे कहा, बेवकूफ मत बनो या वो शख्स अच्छा नहीं है, वो गलत इंसान से मोहब्बत चेहरे की रौनक छीन लेती है। इस दिन मुझे यशमा पहली और आखिरी दफा बुरी लगी थी। इससे इसकी मोहब्बत मिल गई थी। 3 साल पता भी न चला इस शख्स के साथ गुजरते। एक दिन इसने कहा कि निकाह कर लेते। मैंने कहा ठीक है, तुम अपनी फैमिली को ले आओ। इसने झूठ बोल दिया, कहा कि अभी इसकी फैमिली नहीं मानेगी, वो बाद में मना लेगा। मैं फिर से बातों में आकर इससे निकाह के लिए राजी हो गई थी। हम दोनों ने निकाह कर लिया था। 3 दिन इस शख्स ने मेरा इस्तेमाल किया। फिर एक दिन ये कहकर चला गया कि इसकी फैमिली में डेथ हो गई और वापस आ जाएगा। मैं ये सब यशमा को बताना चाहती थी, मगर इसी दौरान यशमा को गुड न्यूज मिल गई। मैं इसे परेशान नहीं करना चाहती थी। हया रोते हुए सब याद करती जराब को बता रही थी। जराब चेहरे पर हाथ रखे से सुन रहा था। फिर वो वापस आया। इसे फिर एक रात मेरा इस्तेमाल किया। सुबह जब मैं उठी तो वो जा रहा था। मैं इसके पास गई। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो इसने बोला, लंदन। मैंने कहा, हमारा निकाह हुआ तो मुझे छोड़कर क्यों अभी से जा रहे हो? तो कहने लगा, तुम जैसी लड़कियों से निकाह नहीं होता, तुम जैसी लड़कियों का सिर्फ इस्तेमाल होता है। निकाह नकली किया था। इससे मुझे लगा मैं बिल्कुल खत्म हो गई। मैं शख्स के पैरों में गिरकर इसे रोकने की कोशिश करने लगी, मगर वो चला गया। मॉम भी इन दिनों बिजनेस टूर पर थी। वो होती भी तो कौन सा मेरी परवाह होती। फिर भी हया रोते रोते इसे बता रही थी। अचानक बोलते बोलते रुक गई। हया ने कर्ब से आंखें बंद कर ली। जराब इसे देखने लगा। प्रेग्नेंट हो गई मैं। ये बच्ची दुनिया में नहीं ला सकती। मैंने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में से खत्म करवाना चाहा, मगर कोई राजी ना हुआ। फिर मैंने एक छोटे से क्लिनिक से बहुत तकलीफदा तरीके से इसे खत्म करा दिया और मैं कातला बन गई। फिर मैं थी और मेरा कमरा, मेरी स्लीपिंग पिल्स और कभी कभी सिगरेट पी लिया करती थी। हया जराब को बताते साथ ऊंचा ऊंचा रोने लगी थी। जराब ने इसे देखा। क्या मैं हूँ आपके काबिल? बताइए, क्या मैं हूँ नूर की माँ बनने के काबिल? क्या मैं हूँ इस घर के अफराद की काबिल? नहीं ना, नहीं हूँ मैं जराब। वो ऊंचा ऊंचा रोते चीख कर जराब को देखकर बोली थी। जराब ने इसके आंसू साफ किए, नरमी से साफ किया। रोते हुए इसे देखने लगा। तुम अभी तक एक ऐसी सजा खुद को दे रही हो जिसकी गुनहगार तुम नहीं हो। या मुझे समझ नहीं आती मर्द हवस में इतना घटिया कैसे हो जाता। वो ये भूल जाता है कि मुस्तकबिल में अल्लाह ने इसे बेटी दे दी तो मर्द जवानी में अपनी बेटी का नसीब लिखता है। तुम देखना, अल्लाह इसे जरूर इसकी सजा देगा। जराब इसे देखते हुए नरम लहजे में बेबसी से बोला था। हया ने इसे देखा था। मैं आपके काबिल नहीं हूँ। इसे देखते हुए रोकर बोली। जराब ने इसके थोड़ा करीब हुआ। तुम मेरे काबिल भी हो, तुम नूर के काबिल भी हो, तुम इस घर के काबिल भी हो। भूल जाओ माजी को, अल्लाह को अपना बेहतरीन दोस्त बना लो। हया जिंदगी सवर जाएगी। उसे देखते हुए मुस्कुराकर बोला था। हया इसे देख रही थी। जराब ने इसकी गाल पर दोनों हाथ रखे थे। हया इसे साकत सा देख रही थी। वो झुककर इसकी सफेद पेशानी पर अपने लब रख दिए थे। वो महसूस करते हुए दिल ने एक बीट मिस की थी। हया साकत सी बैठी से देख रही थी। अब से तुम मिसिस मलक जराब शाहनवाज हो। वो मुस्कुराते से देखकर बोला। हया इसे देख रही थी जो सारी सच्चाई जानने के बाद भी इसके पास बैठा था। चलो सहरी का वक्त हो गया। जराब इसका हाथ थामता हुआ इसे देखते बोला। हया ने इसे देखा। कहाँ? हया इसे परेशानी से देखते हुए पूछने लगी। जराब ने इसे उठाया। आज रोजा रख कर देखते हैं या? उसे देखते हुए बताने लगा। हया ने इसके हाथ से हाथ निकाला। नहीं, मुझे नहीं जाना और ना ही रखना है। हया हिचकिचाते हुए फौरन से बोली। जराब ने इसे देखा।
वैसे भी तुम सारा दिन थोड़ा सा ही खाती हो, किसी अच्छा रोजा ही रख लिया करो, चलो मेरे साथ। उसका हाथ थामता इसे नीचे की जानब ले जाने लगा था। हया इसे देख रही थी। सहरी का इंतजाम हुआ था, सब लोग वहां मौजूद थे। ज़राब के साथ हया को देखकर सब हैरान हुए थे। आज हया भी रोजा रखेगी। ज़राब हया को कुर्सी पर बिठाते हुए सबको बताते साथ अपनी कुर्सी संभाल गया था। इर्तिजा जो नींद में था, इसे धचका लगा था। या अल्लाह खैर, मैं पहले नींद में हूँ, ऊपर से भाई मुझे बेहोश करने पर है। वो आर्स को देखते हुए नींद में बोला। आर्स से देखकर नफी में सर ला गया था। अच्छी चीज वैसे भी आपसे हजम नहीं होती। सो हमेशा की तरह बीच में बोली। इर्तिजा ने इसे देखा था। अपनी बीवी को समझा यार। इर्तिजा आर्स को देखते हुए बोला, साथ ही सहरी शुरू कर दी। सहरी करने के बाद सोहा बर्तन उठाने लगी। या भी इसके साथ बर्तन उठाने में मदद करवाने लगी। यार क्यों मुझे बेहोश करने पर हो, पहले मौलवी अजान नहीं दे रहा, ऊपर से ये सब। इर्तिजा नींद में बोला। आर्स से खामोश रहने का इशारा कर गया। सहरी करने के बाद वो दोनों अपने पोर्शन में आए। या अपने रूम की तरफ बढ़ने लगी। ज़राब ने इसे देखा। कहाँ? ज़राब इसे देखते पूछने लगा। हया ने मुड़कर इसे देखा। अपने रूम में। हया इसे जवाब देने लगी। ज़राब सीने पर बाजू बांधकर इसे देखने लगा। अब से वो रूम है तुम्हारा। ज़राब इसे देखते हुए फौरन से बोला। इसका हाथ थाम कर अपने कमरे में ले आया। यहाँ है तुम्हारी असली जगह। उसे देखते हुए मुस्कुरा कर बताने लगा था। हया के भी लब मुस्कुराए थे। वजू करके दोनों फजर की नमाज अदा कर रहे थे। हया ने ज़राब के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी थी। नमाज अदा करते दोनों ने सलाम फेरा था। हया ने दुआ के लिए हाथ उठाए थे। आंखों से आंसू फिर से बहने लगे थे। ज़राब इसके पास उठकर आया था। आज हम दोनों एक वादा करते हैं, तुम्हारे माजी के मतलब कोई बात नहीं करेंगे और ये मामला खुदा पर छोड़ देंगे। वो अपने बंदे का बदला जरूर लेगा, इसे सजा जरूर मिलेगी। आज से तुम मेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू करोगी हया। उसे देखते हुए इसके आंसू एक बार फिर से साफ करते बोला था। आज हया को खुद पर रश्क सा हुआ था। इस दिन आपने जिस सूरत की तिलावत की थी वो मुझे सुननी है। हया ज़राब को देखते हुए बोली। ज़राब मुस्कुरा दिया, तिलावत शुरू की। जैसे जैसे हया तिलावत सुन रही थी, इसे सुकून सा मिल रहा था। हया आंखें बंद किए इसकी तिलावत सुनती रही। तिलावत खत्म करते ही ज़राब उठा था। हया भी उठी थी। वो दोनों बेडरूम में आकर सो गए थे। ज़राब की नजर हया पर गई थी जो नजरें झुकाई लेटी थी और वो मुस्कुरा दिया था। सुबह ज़राब की आंख खुली ही नजर हया पर गई। ग्लास वाल के साथ की रोशनी इसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिसकी नींद में खलल पैदा कर रही थी। ज़राब मुस्कुरा के नजर इस पर डालता हुआ पर्दा ठीक कर गया था और वो पुरसकून सी सो गई थी। ज़राब वॉशरूम चला गया था। सोहा हया के रूम की तरफ बढ़ी थी, मगर वो वहां नहीं थी। वो परेशान हुई फिर ज़राब के रूम की तरफ बढ़ी। हया को वहां देखकर इसे हैरानगी सी हुई थी। वो मुंह पर हाथ रखे नीचे की जानब आई थी। हया की जब आंख खुली तो कमरे में नजर दिखाई तो वो कहीं भी ना था। आज इसे अपना आप हल्का लग रहा था। आज वो पुरसकून थी। इसने फोन उठाया तो ज़राब का मैसेज आया हुआ था। गुड मॉर्निंग वाइफ। हया मैसेज रीड करके मुस्कुराई थी। इसकी नजर यशमा की तस्वीर पर गई थी। अचानक इसे लगा कि वो अपनी बहन का हक ले रही है। इसकी मुस्कुराहट दोबारा सिमट गई थी। हाय अल्लाह। सोहा तेजी से भागती नीचे आई थी। इर्तिजा और आर्स मौजूद थे। दोनों परेशानी से देखने लगे। क्या हुआ? दोनों ने एक साथ पूछा। सोहा इन दोनों के पास आई। पता है मैं क्या देख कर आई हूँ? सोहा हैरानगी से इर्तिजा आर्स को देखते हुए बोली। इर्तिजा ने आईब्रो झुकाए से पूछा। ला हौला वाला कुव्वता, रोजे के साथ क्या देख लिया? उसे देखते हुए फौरन से पूछने लगा। सोहा ने इसे देखा। मैं आपको नहीं, आर्स को बताऊंगी, सोहा इसे बोली। इर्तिजा ने मुंह बनाकर इसे देखा। आर्स मुस्कुरा दिया। ना बता। मुंह बनाए कहते साथ सीढ़ियों की जाना बढ़ गया। तभी सामने से शाल तेजी से नीचे आ रही थी। इर्तिजा से टकराई। इर्तिजा ने इसे देखा। शाल ने भी इसे देखा। अंधे हो, आंखें नहीं है क्या? इशाल गुस्से से इर्तिजा को देखते हुए बोली थी। उसे नजरअंदाज करता ऊपर की जाना बढ़ गया था। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। इशाल को इसका नजरअंदाज करना सख्त नागवार गुजरा था। गुस्से से बोली। तुम्हें ने तो कहा था कि तुम्हें मेरे मुंह नहीं लगना, वही कर रहा हूँ। इर्तिजा गुस्से से बगैर देखे बोलता आगे बढ़ने लगा था। इशाल ने इसे देखा। हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो। इशाल इसे जवाब देती नीचे उतर आई थी और वो ऊपर चला गया था। वो ना हया भाभी है ना, ज़राब भाई के रूम में सोई हुई है। तो वह आर्स के कान में हल्की आवाज में से बोली थी। आर्स ने देखा। तो इसमें क्या है, मियाँ बीवी है वो। आर्स इसे देखते नॉर्मल से जवाब देने लगा था। सोहा ने इसे देखा था। तो मैं तो नहीं आई ना आपके रूम में। सोहा फौरन से बोलकर आर्स ने मुस्कुराते हुए इसे देखा। अभी डैड से बात करता हूँ, आप कहीं अगर बेगम। वो शौकिया लहजे में इसे देखकर बोला। सोहा इसे देखकर नजरें चुरा गई थी। मेरा ये मतलब नहीं था। तो वह कंफ्यूज सी होती बोली। आर्स को इसे तंग करना में मजा आया था। फिर क्या था? आईब्रोज का शौकिया लहजे में पूछने लगा, जिस पर वो झुर्झुरी लेती वहां से चले गई और वो मुस्कुरा दिया।
حیا فریش ہو کر نیچے آئی تو سب لوگ وہاں موجود تھے۔ ارتضیٰ کی نظر اس پر گئی، اس نے فوراً اٹھ کر حیا سے نور کو لینا چاہا۔ دھیان سے حیا فکر مندی سے ارتضیٰ کو دیتے بولی۔ ارتضیٰ نے اسے اٹھایا اور مسکرا کر دیکھنے لگ گیا۔ اب ان کو سب پتا ہے، وہ ہمیشہ کی طرح مذاقی انداز میں کہتے ساتھ نور کے ساتھ کھیلنے لگا۔ حیا وہی کوچ پر بیٹھ گئی تھی۔ آرز کو فون بجا اٹینڈ کرتے کال سننے لگ گیا تھا۔ اوکے میں آیا۔ آرز فون کان سے لگاتے کہتے صاحب فون رکھ گیا تھا۔ نہید بیگم اسے نے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ نہید بیگم فکر مندی سے اسے دیکھتے پوچھنے لگی۔ مجھے فوراً جانا ہے پولیس اسٹیشن، میری شرٹ بھی پریس نہیں ہے۔ وہ کھڑا ہو کر پریشانی سے بولا۔ سوہا نے اسے دیکھا۔ سوہا؟ اشال حیا ارتضیٰ دونوں نے کھینچ کر اس کا نام لیا تھا۔ سوہا اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں پہلے بھی کیا کرتی تھی، اب بھی کر دیتی ہوں۔ وہ تینوں ہی اکٹھے بولنے پر گھبرا کر جواب دیتی چلے گئی تھی اور سب مسکرا دیے تھے۔ اللہ میری بیٹی کی نصیب اچھے کرے، بہت نیک ہے اور ایک نیک ہی شوہر ملا ہے۔ لیکن خیر آج کل تو بری لڑکیوں کو بھی نیک شوہر مل جاتے ہیں۔ ناصرہ بیگم فوراً سے حیا کی جانب دیکھ کر بولی۔ حیا نے ایک نظر انہیں دیکھا اور خاموش رہی۔ اگنور کرے بھابھی، پھپھو کو روزہ لگ رہا ہے۔ ارتضیٰ حیا کو ہلکی آواز میں مسکرا کر بولا۔ حیا مسکرا دی۔ حیا لان میں بیٹھی تھی، یشما کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ حیا میں صرف ذرا آپ کو شیئر نہیں کر سکتی کسی بھی صورت۔ یشما کی کئی بات یاد کر کے وہ سر چھٹک گئی تھی۔ حیا چاہ کر بھی اپنی بہن کو ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ وہ یہ سب سوچ رہی تھی، اچانک نور کے رونے کی آواز کانوں سے ٹکرائی تھی۔ حیا ہوش میں آتی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ نور کو ملازمہ سے لے کر اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی اوپر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ حیا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، نور سو چکی تھی، تبھی ادینہ بیگم اس کے کمرے میں آئی تھی۔ ارے خالہ مجھے بلا لیتی، حیا نے دیکھ کر فوراً سے بولی۔ ادینہ بیگم نے مسکرا دی تھی۔ حیا بیٹا آپ آسیہ کا فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہو؟ وہ بیٹھتی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ حیا بھی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ مجھے معلوم ہے انہیں کیا بات کرنی ہے۔ حیا ادینہ بیگم کو دیکھ کر جواب دینے لگی۔ ادینہ بیگم نے اسے دیکھا۔ ایک بات بتائیے خالہ، موم شروع سے ایسی تھی؟ حیا لہجے میں افسردگی لیے پوچھنے لگی۔ ادینہ بیگم اس کی بات میں سر ہلا گئی۔ غریب فیملی میں پیدا ہوئے تھے ہم، اسی وجہ سے آسیہ کو لگتا تھا صرف امیروں کی عزت ہوتی ہے، انہی لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ برے دوستوں کی صحبت کا بھی کچھ اثر تھا، پھر اس نے امیر شخص سے شادی بھی کر لی۔ ابا ملنے نہیں دیتے تھے کیونکہ بھاگ کر کی تھی۔ تمہارے ڈیڈ نے بھی آسیہ کے لیے اپنی فیملی کو چھوڑ دیا تھا۔ ادینہ بیگم اسے تفصیل سے بتانے لگی تھی۔ حیا سن رہی تھی۔ تم اپنی موم سے بات کر لینا۔ ادینہ بیگم اسے کہتے ساتھ اٹھ کر چل گئی تھی۔ حیا جاتا دیکھ رہی تھی۔ دونوں بہنوں میں کس قدر فرق تھا، وہ بس یہی سوچ سکی۔